Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we have discussed about the modes of transportation, under which we have discussed about roadways, railways, and waterways. And we have also discussed, Bache, that the pace of development of any country depends upon the level of infrastructure and transport facilities. So, children, do you know where's the world's tallest building located? Yes, here it is. You can see this is Burj Khalifa Bache, and it is in Dubai. Okay, and you can see the development of Dubai from its infrastructure and buildings located over here. So, children, can you see this pic? Do you know about it? This is an artificial island of Dubai. This is Palm Tree Island. This is an artificial island. It is also in Dubai, Bache. So, Bache, as you can see, this Palm Tree Island is artificially made in water. Okay. Not only palm tree bache, world map is also located in Dubai. It is also artificially made. ये भी artificially ही बनाया गया है. Okay. So you can see the wonders of science and technology. So you can see the infrastructure बच्चे. Mesmerizing. And these are the branches of this palm tree. एंड इन ब्रांचेस पे बच्चे लग्जरी अपार्टमेंट्स हाउसेस बने हैं. एंड बच्चे पाम ट्री के सबसे एंड में आपका ये एटलांटिस है. इट्स वेरी फेमस. आपने इसे काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा. इंडिया की हैप्पी न्यू ईयर मूवी में आपको यही एटलांटिस दिखाई देता है. गॉट इट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट हाउ द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री कैन बी measured from its infrastructure. Now children, let us move ahead towards our next topic, that is waterways. It is the cheapest mode of transportation for heavy and bulky goods. So बच्चे heavy and bulky goods की transportation के लिए waterways सबसे best रहते हैं. As we have discussed about Gangetic Plains, वो बहुत ही cheapest mode of transport है बच्चे. So waterways are very beneficial for those countries which are located near the river banks, navigable canals or the coast. सो जो कंट्रीज़ बच्चे रिवर बैंक्स, नेविगेबल कैनाल्स और कोस्ट के बैंक्स पर सिचुएटेड हैं, सो वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा चीप रहता है. एंड इट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर दोज कंट्रीज. ओके. Nowadays, large and mechanized ships are equipped with all modern facilities. They can transport hundreds of passengers and vast amount of goods from one country to another. That's why they are known as floating towns. So आजकल तो बच्चे इतने मैकेनाइज शिप आ गए हैं जो कि पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इक्विप्ड होते हैं. ओके. एंड वो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बच्चे, और ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स को वन कंट्री से अदर कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ओके. एज यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस इज़ द पिक ऑफ मैकेनाइज शिप. दी शिप्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग टाउन्स, क्रूज. ओके. एंड इन पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहती है. लोगों को लगता ही नहीं है कि वो शहर से दूर हैं. बच्चे इन शिप में वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि एक बिग सिटी और टाउन में अवेलेबल रहती हैं. सच एज यहाँ पे मॉल होते हैं बच्चे, स्विमिंग पूल्स, गेम फैसिलिटीज़ एंड डिफरेंट अदर सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट आर ओवर देयर. ओके. सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, पूरा अम्यूजमेंट पार्क यहाँ पे बना हुआ है. ओके. रियली दीज बिग शिप्स आर फ्लोटिंग टाउन्स. Then children, there comes next mode of transportation, that is airways. So it is the latest and fastest means of transport बच्चे, but relatively expensive. So ये बच्चे latest और fastest means है transportation का, but ये बहुत ज़्यादा expensive है. Airways has in a way reduces distances and converted the world into one unit. This means of transport is highly suitable for those areas where railways and roadways cannot be constructed because of difficult terrain. So बच्चे, एयरवेज जो हैं इन्होंने पूरी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा क्लोज ला दिया है. एयरवेज वहाँ पे सुटेबल रहते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा जहाँ पर बच्चे रेलवेज़ एंड रोडवेज़ कंस्ट्रक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है वहाँ की डिफ़िकल्ट टेराइन की वजह से. टेराइन मीन्स वहाँ की जो फिज़िकल लोकेशन होती है
उस फिज़िकल लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रोड्स और रेलवेज़ कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा सकते। सच एज़ ग्लेशियर्स बच्चे, जैसे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, पाकिस्तान बाउंड्री पे ही है, तो वहाँ पे मोस्टली एयरवेज़ के थ्रू ही जाया जा सकता है। ओके। सो चिल्ड्रन, हेलीकॉप्टर्स फ्लड और दूसरी किसी कैलेमिटी के टाइम बहुत काम आते हैं। फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो या कोई और इम्पॉर्टेंट सामान अगर आपको लोगों तक पहुंचाना हो ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, सो उस टाइम एयरवेज बहुत काम आता है। ओके। देन चिल्ड्रन, देयर कम्स पाइपलाइंस। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. The pipelines are used for transportation of liquid and gaseous material like mineral oil, water and natural gas. ये सबसे रिसेंट मोड है बच्चे ट्रांसपोर्टेशन का, और ये लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने के काम आती हैं मोस्टली। गैशियस मटेरियल जैसे कि मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैस, ये चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं बच्चे पाइपलाइंस के थ्रू। और सॉलिड स्लरी फॉर्म में, स्लरी मीन्स बच्चे सेमी सॉलिड आयरन और रॉक फॉस्फेट एट्सेट्रा, are also transported from one place to another over long distances such as HBJ, Hazaria, Bizapur, Jagdishpur gas pipeline. Okay. The natural gas pipeline runs through 4 states of India: Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and UP. So children, इंडिया में नेचुरल गैस पाइपलाइंस कहाँ पर हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी में. ओके. सच एज चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, इस तरह से पाइपलाइंस बिछी होती हैं. ओके. वन मोर पिक ऑफ पाइपलाइंस बच्चे. एज यू कैन सी द वेब ऑफ पाइपलाइंस. सारा का सारा जो मटेरियल इस इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जो भी हो रहा है बच्चे, वो पाइपलाइंस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एज यू कैन सी. ओके. सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, रेलवे ट्रैक्स की तरह पाइपलाइंस के लिए भी अलग से स्पेस बनाया गया है. ओके. और ये नेटवर्क अब स्प्रेड होता ही जा रहा है बच्चे. ओके. पाइपलाइंस के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है, ये सिस्टम अब बढ़ता ही जा रहा है. दिस इज इंक्रीजिंग. सो चिल्ड्रन, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइंस इज इंक्रीजिंग. ओके. देन चिल्ड्रन, देयर कम्स कम्युनिकेशन. What is communication? Communication means exchange of ideas and views from one person to another. So, नॉर्मल सिंपल टर्म्स में कम्युनिकेशन का मतलब बच्चे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, चाहे वो सामने बैठ के बातचीत हो रही हो या फिर वो टेलीफोन के थ्रू. ओके. सो इट कैन बी पर्सनल एज वेल एज एट मास लेवल. ओके. तो ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है और मास लेवल पे भी हो सकती है. Communication networks have become very important for exchanging knowledgeable ideas, which in turn contribute to the economic development. तो communication networks हैं बच्चे, वो knowledge और ideas exchange करने के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं और वो किसी भी country की economic development को भी show करते हैं. Got it? It also helps in developing social relationship and unity. और ये social relationship और unity को भी increase करते हैं. During natural calamities like floods, drought, etc., the means of instant communication such as TV, radio, flash news, so that relief can be rushed to the spot immediately. जब कोई natural calamity आ जाती है बच्चे, such as floods and drought, etc., बच्चे, then children इस time जो instant means of communication होते हैं such as TV and radio, ये बहुत ही ज़्यादा helpful रहते हैं और ये हर पल की खबर देते रहते हैं. तो टीवी एंड रेडियो के थ्रू ही बच्चे ऐसे ऐसे स्पॉट्स का पता चलता रहता है जहाँ पे लोग फंसे रहते हैं और थ्रू दिस हेल्प ऑफ मीडिया बच्चे रिलीफ जो है उस स्पॉट तक पहुँचाई जाती है. ओके. सो चिल्ड्रन, इन ओल्डन टाइम्स पिजन्स वर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेसेस. पुराने दिनों में बच्चे ओल्डन टाइम्स में जो पिजन्स होते थे, कबूतर, उन्हें यूज़ किया जाता था मैसेज सेंड करने के लिए बच्चे. दैन बच्चे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगज़ीन्स आ गई, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आ गई जो कि मैसेजेस पहुंचाने का काम करती हैं. ओके. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ रेडियो. वैसे तो रेडियो आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी अवेलेबल रहता है, टीवी में भी होता है, बट स्पेसिफिकली अगर आप रेडियो की बात करें तो रेडियो आजकल ऐसे भी आने लग गए हैं स्मार्ट वे में. ओके. सो बच्चे, ड्यूरिंग एनी कैलेमिटी रेडियो से मैसेज सेंड किया जा सकता है. ओके. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ टेलीग्राफ मशीन.
दिस इज़ द ओल्डेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। आज तो बच्चे टेलीग्राम बंद कर दिया गया है। पहले जब बहुत ही ज़्यादा बच्चे इमरजेंसी मैसेज सेंड करने होते थे तो टेलीग्राम सेंड किए जाते थे इसी टाइप से, ऐसे मशीन से टाइप करके। बट ये सिस्टम अब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गया है, एब्सोल्यूट हो गया है। हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने बच्चे अब टेलीग्राम सर्विस जो है वो बंद कर दी है। गॉट इट। दीज आर डिफरेंट मैगजीन्स बच्चे। सम आर मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली। कुछ मंथली मैगजीन्स होती हैं बच्चे, कुछ वीकली आती हैं और कुछ फोर्टनाइटली 15 दिनों के बीच में आती हैं। ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स। These may be social magazines, there may be news update magazines, they may be related to social issues, okay, they may be related to entertainment, etc. Okay, but these are the oldest means of communication. Now children, today satellite is the most powerful medium of communication in the world. बच्चे टीवी, रेडियो सभी पुराने हो गए हैं, नो डाउट आज भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। टीवी में हमें एक एक मिनट की खबर मिलती रहती है, रेडियो में तो उससे भी पहले आ जाती है बच्चे। बट इन टुडेज सिनेरियो बच्चे, सबसे जो मोस्ट पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ सैटेलाइट। बिकॉज सैटेलाइट को जो है बच्चे स्पेस में ही फिक्स कर दिया जाता है, और जो बच्चे आज हम स्मार्टफोन चला पा रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स। ठीक है, आज जो भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। और इसी की वजह से टेलीविज़न सर्विसेज जो है बच्चे रिमोट एरियाज़ तक पहुंच गई हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, एज यू ऑलरेडी read about the ionosphere of the atmosphere। हमने बच्चे आयनोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, जो कि एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है और जिसमें आपकी रेडियो वेव्स एंड जो आयन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं। सो सैटेलाइट को भी बच्चे स्पेस में ही फिक्स किया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आयनोस्फेयर बच्चे सैटेलाइट्स वर्क। सो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में बच्चे यही सैटेलाइट जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। गॉट इट। जो फ़ोन पे आप बच्चे रोड मैप एकदम से देख लेते हैं, वेदर रिपोर्ट आ जाती है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, देन चिल्ड्रन, कंप्यूटर इज़ येट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय द मैन। सो बच्चे, प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर के थ्रू सारे काम ईजी हो गए हैं, कैलकुलेशन भी ईजी हो गई है। Got it? It has revolutionized the process of communication through email, internet, CDs, pen drive, laptop, palm top, etc. So बच्चे, कंप्यूटर के आने से सभी की लाइफ जो है रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई है। रेवोल्यूशनाइज मीन्स एकदम चेंज हो जाना। जिस दिन से बच्चे कंप्यूटर कॉमनली यूज़ होने लग गए हैं, उस दिन से कॉमन मैन की लाइफ भी चेंज हो गई है। एज यू कैन सी, पेन ड्राइव, CDs, पाम टॉप, लैपटॉप, इन चीज़ों ने बच्चे कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है और लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है। गॉट इट। अर्लियर बच्चे जो टेलीग्राम था, नियर बाय प्लेसेस में 2-3 दिन में पहुंचता था और फार अवे प्लेसेस में भी 7-8 दिन बाद पहुंचता था। और जो सिंपल मेल होती थी, सिंपल चिट्ठी होती थी, उसे भी काफ़ी टाइम लगता था पहुंचने में। एंड फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपने लेटर सेंड करना हो तो वहाँ पे तो 2 महीने या 1 महीना तो लगता ही था। ओके, बट नाउ चिल्ड्रन, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एक ईमेल आपका हाफ सेकेंड से भी कम टाइम में पहुंच जाता है, एंड यू कैन सेंड एनी इम्पॉर्टेंट मैसेज विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो इसी कारण बच्चे टेलीग्राम सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, बिकॉज बच्चे अब इंटरनेट और कंप्यूटर ईमेल के थ्रू लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है और मैसेजेस सेंड करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चे, ये इसी इंटरनेट एंड कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल हैं। सो चिल्ड्रन, थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि इस कोरोना में भी आपकी जो स्टडीज़ हैं उसमें इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं आई है। ओके, अब तो बच्चे कंप्यूटर सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और मोस्टली जो फ्यूचर है वो अब कंप्यूटर पर ही डिपेंडेंट है। ओके, and we can get any information about the entire world while sitting at home and using computers। आजकल तो हम घर में बैठे बैठे ही पूरी दुनिया के बारे में कंप्यूटर पे पता कर सकते हैं बच्चे, बस एक नेट का कनेक्शन होना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, सिर्फ कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है इंटरनेट के थ्रू, डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज़ के साथ काम भी कर सकते हैं।
Okay, so there is no doubt, children, the development of transportation and communication is very important for the growth and development of any country. Okay, so children, that's all in today's topic. Revise your topic. Okay.